question of the day. On the screen, children, people may see a question. Keshav is an investor in a company, is curious to know about so-called certain things. I repeat, he is curious to know about certain things, and certain things constitute financial status. Profit loss में इसको इतना ज्यादा अभी इंटरेस्ट नहीं है. He is just interested to know कि कंपनी का कैश पोजीशन क्या है. I repeat, कंपनी की कैश पोजीशन क्या है. बिकॉज अगर कैश होगा तो मेरे को डिविडेंड मिलेगा. कैश अगर नहीं है, प्रॉफिट कितना भी हो, 90% तो इन्होंने क्रेडिट सेल की हुई है. प्रॉफिट होगा बट कैश में नहीं है. सो दिस पर्सन इज लेस इंटरेस्टेड इन नोइंग प्रॉफिट, asset liability, but he is highly interested in knowing what? Cash position. So children, class 11th में हम एक बुक पढ़ा करते थे, सब्सिडरी बुक में, where we used to record cash receipts and payments. What that book used to be called as? Cash book. So for the purpose of knowing the cash position, can't he refer this? Can't he refer this cash book? Chaliye. So he can refer a book which is known as cash book. तो कैश बुक देख के इसको आइडिया लग जाएगा that company has how much cash flown in and how much cash flown out, और एंड में कितना कैश बचा है, मेरे को डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा. So please put this question with the answer in your classwork copies. Everybody knows what is a cash book, correct? Yes, sir. चलिए. So children, here you get a format of cash book. Requested everybody to draw this format in your classwork copies, and then we'll proceed further, children. So first and foremost, aapko nazar aayega on the debit side, we have what is called as receipt, children, and credit side, what is called as payments. First and foremost, we have two balance brought down, that is opening balance of cash and bank. I hope so everybody knows what is revenue from operation, that is sales. Two debtors means money received from debtors. Trading commission means commission received. Two land and building means what, children? Land and building sold or land and building bought? Sold, because money has flown in. So we must have sold, तभी पैसे आए होंगे. Rent is received, interest is received. Two equity share capital, if represented on the receipt side, it means we have issued shares. And two debentures, if appears on the receipt side, again it means we must have issued debentures. So all appearing on the debit side has one thing common in them. What? Receipt. And on the credit side, children, all items represent what? Wages paid to the workers, salary paid to the employees, rent paid to the landlord, insurance premium paid to the employer, insurance company, payment made to the creditors, bought goods for cash. Buy machinery means what? Machinery ko buy kar diya dekh ke. Bought it because we have paid. Same with motor car, loan repaid, aapne dividend pay kiya shareholders ko, and interest is paid to debenture holders. Then we paid 9,000 as income tax, and finally we are left with 2,11,000 as cash balance and 3 lakh as bank balance. So children, this cash book will provide a very clear-cut ideology from where the company is getting money and where it is supposed to pay money. Is this understood by all? Yes. So this represents receipts and this side represents payments, inflow and outflow. Quickly update this. On the credit side, everybody must be observing total cash and bank balance that we have with us, children, is how much? 5,11,000. And this company has 10,000 shares issued in the market. How many shares, children? 10,000. If the company wishes to give dividend on the face value of a share rupee 10, let us say 40%. What is 40% of rupee 10, children? 4 rupee. And on 10,000 shares, it would be 40,000. It has sufficient cash balance or not? It has. So like this, the cash book could be interpreted.
बट एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन आपको मेरे को देना पड़ेगा. You people being commerce students, accountancy students may understand cash book कैसे prepare होती है. I repeat, may understand cash book कैसे prepare होती है. You have a very, very, very professional idea that on the left side, that is debit side, we have all receipts from where the money came into the business. And on the credit side, we have all payments to where money went out. But if a person is not knowing accountancy, children, will he or she be able to understand this cash book? अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो आपको ये समझ में आएगा. बट इफ यू आर अ लेमन चिल्ड्रन, क्या आपको ये समझ में आएगा? आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा. ये आपके सिर के ऊपर से उड़ जाएगा. टू का मतलब टाटा लगेगा, बाय का मतलब बाय बाय लगेगा. सो क्या उन लेमन इन्वेस्टर्स को कंपनी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने का कोई भी राइट नहीं होना चाहिए? होना चाहिए. या कंपनी जब शेयर्स बेच के उन्हें इन्वेस्टर बना रही है तो उन्हें 3 महीने का शॉर्ट टर्म कोर्स करवाए कॉमर्स का? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल. तो इसी के लिए हमने कुछ अरेंजमेंट किया है. अपडेट दिस, देन आई विल आंसर दैट क्वेरी. So as I said, children, you are having good knowledge of accountancy, so you understand debit side represents inflow of money, that is receipts, and credit side represents outflow of money, that is payment. But if anybody is an investor in a company and he wants to know about the cash movement of the business and the company represents him or presents before him a cash book, will it be as easy affair for that person to understand? उसका तो सिर के ऊपर से निकल जाएगा, टेंजेंट भी नहीं बनने वाला, कुछ समझ में नहीं आएगा उसको. सो फॉर दैट पर्सन हमारे सेबी को, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को बड़ी चिंता रहती है. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बड़ी चिंता रहती है. So they have instructed to companies that all companies, I repeat, all companies will prepare a statement where the same information as appearing here, children, will be shown in an easy manner. How? Revenue from operations would be called as cash sale of goods. Two debtors would be called as receipt from customers. Two trading commission will be called as receipt of trading commission. Two land and building will be called as receipt from sale of land and building. Two rent received will be called as receipt of rent. Similarly, two interest received will be called as receipt of interest. अब ये बेचारे को समझ में नहीं आएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल होता क्या है. बट इफ वी से receipt of money by issue of shares and receipt of money by issue of debentures. What information sounds to be user friendly, children? That I wrote in my beautiful handwriting or that which was काला अक्षर भैंस बराबर? समझ में आया? तो अगर आपको हिंदी की एक कहावत सुनी होगी आपने, काला अक्षर भैंस बराबर, इसका मतलब क्या होता है? काले अक्षरों में लिखी हुई चीजें कैश बुक में लेमन इन्वेस्टर्स को समझ में नहीं आती. हिंदी के टीचर इस सुन के खुश बहुत होंगे और उसके बाद चप्पल वर्षा चालू हो जाएगी. समझ गए बच्चों? सो व्हाट इज इट चिल्ड्रन? द टेक्स्ट इन रेड और द टेक्स्ट इन ब्लैक? द टेक्स्ट इन रेड वुड बी इजीली अंडरस्टैंडेबल इवन बाय अ लेमन इन्वेस्टर. सिमिलरली बाय वेजेस, बाय सैलरी, इसके लिए अगर हम लिख के दें payment of wages, payment of salaries, then payment of rent, then payment of insurance premium, then it is payment to, not of, हर जगह एक ही प्रपोजिशन मत बेचिए, payment to creditors, payment for purchase of goods, payment for purchase of machinery, payment for purchase of motor car, loan paid off or repaid, payment of dividend, similarly payment of interest, and at last payment of tax. So children, this data sounds to be much more understandable for layman investors or a technical cash book. Answer children, this data that I wrote in simple text or the technical cash book?
सिंपल। अब लोग कहेंगे सर 11th क्लास से लेकर 12th क्लास तक हमें चीट किया गया है, वहां पे लिख के आता था कैश सेल ऑफ गुड्स, और आप ही जैसे इंसान बोला करते थे read the transaction and find out the subject and predicate, then find the two account, classify them into real, personal, nominal, apply the rule, pass the journal entry। जर्नल खत्म हुआ, फिर लेजर खत्म हुआ, फिर लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट्स। जब आना वापस इसी पे था तो इतना पढ़ाई क्यों? समझ में आ गया? ड्यू अपॉलॉजीज फॉर दिस path which is being misled। समझ में आ गया? ड्यू अपॉलॉजीज नहीं है। खैर, तो चिल्ड्रन ये स्टेटमेंट बनानी जरूरी है, वो सब भी जरूरी था, क्योंकि अगर वो सब ना बनता तो कैसे पता लगता कि फ्रॉड हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्रॉस चेक हो रहा है कि नहीं हो रहा, हमने अकाउंटिंग ठीक की है कि नहीं की, कोई एम्बेजलमेंट गबन घपला तो नहीं हो रहा। तो वो उन सब चीजों के लिए बनाया गया था। समझ में आ गया? तो नेवर आस्क योर फादर, जब रिवॉल्वर चलानी ही नहीं है तो रखी क्यों है? आइए मोहल्ले वालों के सामने चलाते हैं, डराते हैं उनको। इट इज फॉर सिक्योरिटी रीजंस, कि घर में कोई चोर वगैरह आ जाए उसके लिए है। कोई दीपावली की वो स्प्रे गन नहीं है आपकी, या होली की, कि होली की पिचकारी में पानी भर के उसको चला रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग? सो नेवर गो इन फ्रंट ऑफ सोल्जर्स एंड से 5 साल से आपने गन चलाई नहीं है, खराब हो गई है, लाइए 40-50 बुलेट्स हम ही शूट कर दें किसी को। हवा में चलाते अच्छा लगेगा, तो इट इज नॉट मेंट फॉर अच्छा लगेगा। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? बात समझ में आ गई? सो चिल्ड्रन, दिस स्टेटमेंट which constitutes the text in red to be made available for understanding by a layman investor is known as what is called as cash flow statement। ये सत्य आपको दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलेगा। क्यों इस तरह के स्टेटमेंट की नेसेसिटी होती है? हर जगह यही लिखा हुआ मिलेगा। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने बोला बनाना है, सेबी ने बोला है, बट उसके पीछे कोई लॉजिकल रीजन तो होना चाहिए। लॉजिकल रीजन इज दिस ओनली चिल्ड्रन, इन्वेस्टर वांट्स टू नो दैट व्हाट इज द कैश मूवमेंट, कैश पोजीशन इन द कंपनी, एंड इन्वेस्टर कैन सी द कैश बुक if he or she is a commerce graduate or an accountancy learned person, but if he or she is a layman, उसे पता ही नहीं लगेगा कि इस काले अक्षरों में लिखे हुए टेक्स्ट का मतलब क्या है। तो for these people we prepare a statement like this which is called as cash flow statement। सबको सुनाई पड़ गया? Children heard this well? Any query? Yes, sir. So it simply states how an investor will be able to understand the content of cash book if he or she has no knowledge of accountancy। कुछ बच्चे बोलेंगे सर मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं, even many having knowledge of accountancy won't understand this। समझ में आया कि नहीं? तो इसकी तो आप बात ही मत करिए। खैर, नो पर्सनल कमेंट्स प्लीज। सो इफ ही और शी हैज नो नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी, उसकी हेल्प को एक बैसाखी है सेबी की और ICAI की। मोका कैफे मत समझिएगा, इट्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। गॉट इट क्लियर? Suggested to provide the same in the form of simple communication to the investors by a statement known as cash flow statement। No need to write, you'll get the workbook, उसमें सब छपा हुआ है। कैश बुक तो मैंने जान पूछ के आपको बनवाई ताकि आप एटलीस्ट ये समझ जाएं कि कैश बुक में डेटा रिकॉर्ड कैसे होता है। सो व्हाट इज द नीड चिल्ड्रन? नीड फॉर स्पीड नहीं है, इट इज नीड फॉर प्रिपरेशन ऑफ CFS। थोड़ा सा टेक्स्ट में चेंज आ चुका है। सो पहला हिस्ट्री का कंटेंट ये बोलता था, कंपनीज विच आर लिस्टेड एट द स्टॉक एक्सचेंज, जिनकी शेयर्स की बाइंग सेलिंग होती है या जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है, आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर व्हाट इज कॉल्ड एज कैश फ्लो स्टेटमेंट। बट चिल्ड्रन अब ये कंटेंट खत्म हो चुका है, अब कंटेंट आ चुका है all companies, I repeat children, all companies either listed at the stock exchange having an annual turnover of 50 crores or not are required to prepare a cash flow statement। तो अगर आप कहीं पुराना डेटा पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा कि स्टॉक एक्सचेंज में बाइंग सेलिंग होती है शेयर की, या 50 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है, इन्हें CFS बना के देना है अपने इन्वेस्टर्स को। बट अब ऐसा नहीं है, नाउ ऑल कंपनीज आर सपोज्ड टू प्रिपेयर। इवन चिल्ड्रन, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स ने अगर स्पेशल अप्रूवल के थ्रू, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, किसी जॉइंट स्टॉक कंपनी से बोरो किया पैसा, या रिलायंस जियो इन्फोकॉम मेरी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में पार्टनर है,
मेरी LLP को भी बनाना पड़ेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट. कंपनीज का इंटरवेंशन wheresoever is there, you are supposed to prepare CFS. इतनी बात सबको सुनाई दे गई? And what is the general need, children? The investors may be interested in knowing the cash position for different business activities. That is, activities concerning day-to-day operations, concerning with non-current assets, concerned with shareholder funds and non-current liabilities. So I would like people to please put this, children, under the heading general need for preparation of CFS. You can put general need for preparation of CFS and please copy this text quickly. So तीन चीजों की इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं. डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज, चिल्ड्रन. Then we have what is called as activities concerning non-current assets, and thereafter, children, activities concerning shareholder funds and non-current liabilities. हम इनके लिए कुछ स्पेसिफिक टेक्स्ट यूज करेंगे अभी. Children, the day-to-day activities of the business have a special name in this statement, and they are called as operating activities. I repeat, children, they are called as operating activities. Like you are electricity department, तो आपकी भाई डे टू डे एक्टिविटी क्या होगी? To supply current electricity to the residents of the colony, residential or commercial, to collect money after raising the bill at their places. किसी ने कटिया वगैरह लगाई है तो उससे पेनल्टी भी वसूली है. टेक सिक्योरिटी मनी जब कोई न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई करे. When anything goes wrong, send your employees, electricity department के लाइनमैन and all that, जो जाके मेंड करते हैं वायर्स में अगर कोई प्रॉब्लम हो गया. ये रोजमर्रा की एक्टिविटीज को आप क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग. एक टीचर के लिए पढ़ाना इज व्हाट, चिल्ड्रन? डे टू डे एक्टिविटी, इट इज ऑपरेटिंग. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने ट्रांसफॉर्मर्स इंस्टॉल किए, पोल्स इंस्टॉल किए. Children, every day they'll be doing this? No, not at all. So these are non-current assets for them, fixed assets. इनसे अगर कोई भी पैसे का लेन देन हो रहा है इन एक्टिविटीज से, ट्रांसफॉर्मर नया आ रहा है, पुराना बेचा जा रहा है, पोल्स का इंस्टॉलेशन हो रहा है, we call them as investing activities. And any which is related to shareholder funds and non-current liabilities, children, are known as financing activities. Many a time, children, you must have traveled in a cab, Ola or Uber. तो मान लीजिए कि आपने 10 Honda City cars खरीद ली और सबको Uber services में अटैच कर दिया. Will you be buying those cars every day? No. So buying car is a non-current asset. Yes or no? कैश फ्लो की डेफिनेशन में हम इसे क्या बोलते हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. 2 कारें 10 साल बाद खराब हो गई, खटारा. यू विल प्रिजर्व देम एंड ओपन अ म्यूजियम और यू विल सेल देम. जब उनको खरीदा था तब भी इन्वेस्टिंग, आज खटारा हो गई, उन्हें बेच रहे हैं, देन ऑल्सो इट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टिंग. पेमेंट ऑफ सैलरी टू द ड्राइवर, पेमेंट ऑफ व्हीकल सो कॉल्ड फ्यूलिंग चार्जेस, पेमेंट ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस, servicing charges, puncture repairing charges, day-to-day activities are called as operating. And in 10 cars को खरीदने के लिए आपने 70% of the money बैंक से लोन भी लिया था, children. This is called as which type of activities? Financing activities. सुनाई पड़ गया? Children, have you heard the name of ISRO, Indian Space Research Organization? Yes. The satellites that they launch, the PSLV vehicle जो उनके पास है, रॉकेट जो ले जाता है सैटेलाइट को, every day they purchase the equipments. एक बार बन गया, 4-5 साल 10 साल तो चले गई. Which activity? Investing. Got it clear? Government pays salary to the scientists, to the research associates at ISRO, electricity expenses, building maintenance, refreshment, traveling, conveyance वगैरह वगैरह. It is what? Operating. और हमको वर्ल्ड बैंक ने 3000 करोड़ का लोन दिया है स्पेशल एंटी टेररिस्ट सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए. विच एक्टिविटी? फाइनेंसिंग. तो मैंने इसको बहुत आसान तरीके से क्लासिफाई कर दिया है.
जितना भी एक्टिविटी डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड है, वी कॉल इट एज व्हाट, नॉन करंट असेट से कुछ भी रिलेटेड है, शेयर होल्डर फंड्स और नॉन करंट लाइबिलिटी से रिलेटेड है, but there are certain exceptions children, I repeat, there are certain exceptions, but 99% ऐसा ही चलता है. So this digital pen children which I used for writing, will I be purchasing it every day, every month? Once bought, पिछले 3 साल से चल रहा है, once bought 5-6 साल तो चलेगा ही चलेगा. So it's my non current asset और I am like Amazon selling every day these commodities. तो मेरे लिए इसे खरीदना इन्वेस्टिंग, बट Amazon के लिए मेरे को इस प्रोडक्ट को बेचना ऑपरेटिंग. एंड इफ आई से मैंने पे लेटर स्कीम पे EMI पे इसको खरीदा है, दिस डिजिटल टैबलेट डिजिटाइजर ये इन्वेस्टिंग है, बट जो लोन लिया है इसके लिए वो फाइनेंसिंग. यू आर अ बिजनेसमैन और आपने गोल्ड ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट किया, आपने बैंक से 100 करोड़ का लोन लिया चिल्ड्रन, दिस लोन टेकिंग एक्टिविटी इज कॉल्ड एज फाइनेंसिंग. इस 100 करोड़ से आपने लैंड खरीदा, शोरूम बनवाया, उसके अंदर बहुत बढ़िया इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स लगवाई, शोकेस बनवाया, देन कैरेट की मशीन खरीद ली, कैरेट मेजरमेंट की, देन गोल्ड मेल्टिंग मशीन खरीद ली, देन आपने सो कॉल्ड सेंट्रल एयर कंडीशन करवाने के लिए VRV यूनिट्स लगवा दी AC की. सब असेट्स हैं आपकी. विच एक्टिविटीज? इन्वेस्टिंग. सुनाई पड़ गया? Children heard this? And the amount of jewelry items that you keep on selling every day, people come and exchange their old jewelry and buy the new one, EMI plans आप चलाते हो लोगों को ज्वेलरी बेचने के लिए, these activities are operating. तो मैकडॉनल्ड्स के लिए ईटेबल्स रॉ फॉर्म में खरीद के फिनिश फॉर्म में बेचना इज व्हाट, ऑपरेटिंग. स्टोर में फर्नीचर परचेज करना, किचन वेयर परचेज करना, कॉफी मशीन परचेज करना, कंप्यूटर बिलिंग मशीन परचेज करना, इट इज व्हाट, इन्वेस्टिंग. एंड फॉर दिस पर्पस दीस पुअर चैप्स हैव टेकन लोन फ्रॉम बैंक. दैट इज क्लियर? तो आपने अगर लोन लिया और कार खरीदी, टेकिंग लोन इज फाइनेंसिंग, गोइंग टू द शोरूम बाइंग अ कार इज इन्वेस्टिंग. अगर उबर की तरह चला रहे हैं और फेयर वसूल रहे हैं पैसेंजर्स से, इट इज ऑपरेटिंग. क्लियर? चलिए कभी आप बच्चों सो कॉल्ड ताज होटल गए हैं? चलिए आपको ले चलते हैं. ताज वाले लोगों को फूड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, रेस्टोरेंट में, बैंक्वेट्स में, लॉजिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं. सो ये उनका डे टू डे काम है. शैम्पू, सोप, बॉडी वॉश, टाल, ये सब आपको प्रोवाइड करते हैं. अरे टाल मतलब टावल तो लिया, समझ में आ गया कि नहीं? सो चिल्ड्रन दीज एक्टिविटीज आर कॉल्ड एज व्हाट, अपने एम्प्लॉइज को सैलरी भी देते हैं वो लोग, समझ में आ गया? बट जो शैंडलर्स एंड ऑल उन्होंने परचेज की अपने मेन एंट्रेंस रिसेप्शन एरिया के लिए, फर्नीचर, बेड, एयर कंडीशनर, और रूम के अंदर वो कॉफी मशीन है, LED टीवी है, एयर कंडीशनिंग यूनिट है, चेयर्स है, कारपेट्स हैं, ये लॉन्ग टर्म चलेंगे. व्हाट दीज आर? और ताज ने 200 करोड़ रुपए का लोन लिया जब कसाब जी सब बर्बाद करके गए थे रिपेयर मेंटेन कराने के लिए. विच एक्टिविटी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी. समझ में आ गया? मान लीजिए आपकी कॉलोनी में चिल्ड्रन कोई नया रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सेटअप हो रहा है, लेट अस से अ न्यू टेंपल, और वहां पे शिव जी की मूर्ति लगाई जा रही है. इसके लिए उन्होंने मोहल्ले से डोनेशन भी लिया. विच एक्टिविटी? ना 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 ना, वो इंटरेस्ट देंगे क्या आपके डोनेशन पे? इट्स ऑपरेटिंग. सवेरे शाम पूजा पाठ का काम वहां पे होता है, प्रसाद मिलता है, इट इज. बट बैंक से उन्होंने 50 लाख का लोन भी ले लिया, देन इट इज फाइनेंसिंग. समझ में आ गया? पक्का? कंफर्म? टेक एन एग्जांपल चिल्ड्रन. योर स्कूल हैज इंस्टॉल्ड अ न्यू बास्केटबॉल वुडन कोर्ट. Every day they will do it. Which type of activity? Investing. For this activity, they took a loan from the nearby bank branch, State Bank of India. Financing. School is taking fee every quarter from the students, paying salary to the teachers, paying electricity expenses, paying internet charges, paying money to the staff for cleaning and maintenance. रोजमर्रा के काम है. कौन सी एक्टिविटी? समझ गया? मैंने आपको कुछ जेरोक्स करा के टैक्स प्रोवाइड कर दिया for the purpose of enhancing your educational activities. What is it? Operating. Buying a laptop, a new digitizer is what? Investing. And borrowing money from the bank for this? सर अब कान पक गया सर, अब और नहीं सर, अब सर ज्यादा हो गया, ओवरफ्लो हो जाएगा सर, वॉमिटिंग आ जाएगी.
डॉक्टर अंकल का एग्जांपल ले लेते हैं। आपकी कॉलोनी में नया हॉस्पिटल सेटअप हुआ, तो जो लोग हॉस्पिटल में जमा है, एडमिट हैं, क्लियर, एडमिट है, एक ही बात है। डॉक्टर अपने हॉस्पिटल के उनसे रूम चार्जेस लेते हैं, नर्स को पेमेंट करना, जूनियर डॉक्टर्स को पेमेंट करना, जो दवाई वगैरह का खर्चा है वो सब झेलना, बाद में आपसे पैसा लेंगे उसका। ऑल दीज एक्टिविटीज आर व्हाट चिल्ड्रन? ऑपरेटिंग। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, बाइंग अ 3 करोड़ रुपए MRI CT स्कैन मशीन, समझ में आ गया? तो कस्टमर को, अगर कस्टमर कह रहा हूँ, पेशेंट को अगर ठीक करना है और डॉक्टर बोलते CT स्कैन का 2000 नहीं 25,000 लगेगा, वो अपने आप ठीक हो जाएगा कि 25,000 दे रहे तो अच्छा ही हम ठीक हो जाए। सो दैट बाइंग अ CT स्कैन मशीन। ऑपरेशन थिएटर में सर वो बाहर ब्लू वाला बल्ब होता है, रेड वाला बल्ब होता है, डॉक्टर बाहर निकलता है कहता है आई एम सॉरी, ये मूवी में होता है, रियल लाइफ में ऐसा कम होता है। सो चिल्ड्रन, ऑपरेशन थिएटर की जो मशीन वगैरह होती हैं, एक्सरे मशीन, अदर मशीन एंड ऑल दैट, इन्हें जब हॉस्पिटल ने खरीदा, इट्स व्हाट? इन्वेस्टिंग। और हॉस्पिटल ने इसके लिए थोड़ा सा लोन भी ले लिया नियर बाय बैंक से। समझ में आया? बड़ा दिन हो गया मूवी देखने नहीं गया मैं। मूवी देखने आईनॉक्स चलते हैं, PVR सिनेमा चलते हैं। सीट, स्क्रीन, डिजिटल प्रोजेक्टर, फायर फाइटिंग सिस्टम, ये सब कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। और जो वो बाल्टी वाला पॉपकॉर्न मिलता है अमीरों वाला 800 रुपए का, इसे खरीदना, टिकट बेचना, एम्प्लॉय की तनख्वाह एंड ऑल दैट, ऑपरेटिंग। समझ में आ गया? एक बार वहां पे देखा, पॉपकॉर्न मार्क था 600 का और चॉकलेट वाला था 700 का। तो मैंने कहा काम करते ना, 600 का लेते हैं और 20 रुपए की 2 डेयरी मिल्क खरीदो, और मेल्ट हो ही जाएगी गर्मी में, उसके ऊपर मेल्ट कर 80 रुपीज बच जाएगा कम से कम। तो ये जो वो एक्टिविटीज करते हैं वो कौन सी होती हैं? रियलिटी में तो बहुत गिरी हुई एक्टिविटीज हैं, बट कैश फ्लो में ये क्लासिफिकेशन गिरी हुई एक्टिविटीज का है नहीं, तो वी कॉल इट एज व्हाट? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। समझ में आ गया? एंड इसके लिए भी PVR ने लोन लिया हुआ है। स्टूडेंट्स को स्टडी मटेरियल मिलता है हर महीने, कुछ लोग सॉल्व कर लेते हैं ऑपरेटिंग, कुछ बुकलेट संभाल के उसको नॉन करंट असेट बना के रखे हुए हैं। सर 5 साल तक ये बुकलेट काम आएगी। तो अगर आपने मेरे बुकलेट को ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाया तब तो 9900 आएगा, अगर आपने इन्वेस्टिंग बना दिया तो आपके पापा की फाइनेंसिंग एक्टिविटी बढ़ जाएगी। समझ में आया कि नहीं? पक्का? प्लीज अपडेट दिस चिल्ड्रन, प्लीज अपडेट दिस।